कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। जो कल करना है वो आज करो, आज करना है जो करो। जब कब क्या जाने क्या हो जाएगा, मतलब करने का भी मौका हो जाएगा। सो ये बात है, मतलब मोदी वक्तों में मतलब मुसलमानों के जो हॉरेबल हेट्रेड उन पर ब्रेन में डाला गया, और जो 30 वेस्टर्न मीडियाज़ और 30 मिलियन इस्लामोफोबिक इंडस्ट्रीज़ उनको ब्रेन वॉश किया, उसका विक्टिम से भी। फर्स्ट एंड मोस्ट, मुसलमानों को आतंकवाद के इल्ज़ाम देने से पहले आई थिंक हमें स्टैटिस्टिक्स में रखना चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मुस्लिम आर टेररिस्ट और नॉट। सो लेट्स अस रिलाई ऑन एमनेस्टी इंडिया। According to Amnesty India, 96% of people who are committing terrorists are Maoists. Religion-wise, you can call them Hindus. The second group, which is committing terrorism, is the Christian and paganist people. And the third group, which committing are Muslims. But if you look at this carefully, it is the 5% people who are committing terrorists. But we must blame 5% people for Muslim terrorism. Sounds strange, huh? दूसरी तरफ हम what Islam teaches about terrorism देखते हैं। तो इससे पहले हम टेररिस्ट पोर्टल में जाते हैं। SATP हो या फिर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, इनका मानना है कि सबसे डेंजरस टेररिज्म जो इंडिया में ग्रिप कर रहा है वो माओइस्ट है, और वर्ल्ड एडिटर की वजह से सबसे डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप वो माओइस्ट। सो ब्लेमिंग मुस्लिम फॉर टेररिज्म व्हेन मोस्ट ऑफ टेररिस्ट आर माओइस्ट, ऑल्दो दे आर SST हिंदूज, ये क्यों नहीं मिलती। दूसरी बात, यहाँ में एक तरह से टेररिज्म को मतलब जिस तरह की डेफिनेशन इंडिया में दिया गया है वो खुद ही में एक ridiculous definition of terrorism. This definition can never be supported by anyone. The definition of terrorism is this: when a government kills its citizen, or when a powerful group kills another group, through terror, through violence, through whatever, it's called terrorism. So I believe that everyone is a terrorist. For example, Samjhota blast, Makkah Masjid blast, and then Makkah Masjid and Khwaja Dargah blast. These are all acts of terrorism. और इसको करने वाले हिंदू ग्रुप्स थे। सनातन संस्था, that's a Hindu terrorist group. Alpha, headed by Arvind Rajkumar. NDAB by Ranjan Dayamari. DNL the DSDJ, Dima Hasal Daljin Joel, headed by Joel Golos and Rishiraj Burman. They are all Hindus. And Blue Rings, they are Hindu terrorists too. And I think Metis are also Hindu terrorists. Pre-box all the Hindu terrorists. So Northeast could Christian or Hindu terrorists fully. How many Muslim terrorist attacks? Very few. Because most of bomb blasts, the Indian people could Hindu terrorists. But I'm not going to blame Hindus. Because I know Hindus are not terrorists. But I don't believe that such double standard must be applied in the case of Muslims. Why apply double standard to Muslims? If you hate Muslims, तो मुस्लिम देशों में जाना ही बेकार है। मतलब इतने सारे हिंदू मुस्लिम कंट्रीज़ में, दुबई में, पाकिस्तान में ऑलरेडी रिजर्वेशन में, रमेश कुमार वाकमनी साहब तो वहाँ में हैं। सर आपको पता है आपके पाकिस्तानी हिंदू भाई CA को रिजेक्ट कर चुके हैं। थूक दे, बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आएगा अभी इंडिया में। इस तरह से असम में उनका साथ जुल्म हो रहा है, कोई नहीं आएगा। बेंगोल खेड़ा जो है वो भी एक हिंदू टेररिज्म ही है। नियरली मैसेकर इज अ फॉर्म ऑफ हिंदू टेररिज्म। Hashimpur massacre is a form of Hindu terrorism. Mandai massacre is a form of Hindu terrorism. There are many branches of Hindu terrorism, if I started to calculate it. There's another kind of terrorism, state terrorism. And India is number one of them. Just check out on HRW. You will get all the information. As what I call Muslim terrorism. Well, the Holy Quran says, we have ordained to the children of Israel that whomsoever kills a person, not in relation or qasar, or to spirit mischief, if anyone kills a person, he kills the whole humanity. If anyone saves a person, he saves the whole humanity. And we have sent our prophets and messengers to clear and provide them proofs, but they used to kill them and murder them. This is the verse. And associate not anything with Allah, and do not take anyone's life which is without the reason just. This is what the Quran says. And do not kill any believer unintentionally, and whoso kills the believer unintentionally, he despises hell. Barely Allah forbids you of making mischief on earth. Allah has forbids of making mischief on earth. और भी बहुत सारे आयत हैं. Fight in the name of Allah those who fight you, but do not transgress. Clearly Allah has distinction.
और जहाँ तक इस्लाम के वायलेंट वर्सेस के साथ, मेरे भाइयों पहले अच्छे से कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, उसकी तफसीर पढ़िए किस लेवल में है। हाँ, और जो 9.5 लिखा है उसमें क्या लिखा है कि जब आपके दुश्मन हो उसको ऐसी लम दो उसको, और अगर वो इस्लाम कबूल करे या तो मत मारो। कब मारना है? जब वो ट्रीटी तोड़े, जब ट्रीटी तोड़े तभी सजा है। और रमज़ान के वक्त भी नहीं करना है, उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। ये बहुत ही ह्यूमन्स है। आई थिंक जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि जो मुस्लिमों का लॉ है, वॉर लॉ, उसी लॉ पर इंटरनेशनल वॉर लॉ बेसिस है। यूनाइटेड नेशन ने कभी नहीं कहा कि वॉर नहीं हुआ, वॉर होगा। इस्लाम बिलीव्स इन वॉर बट जस्ट वॉर, देयर इज़ नो होली वॉर इस्लाम। जीनार जज्ब अल क्या मुक़द्दस इज़ नॉट इन इस्लाम, इट्स इन क्रिश्चियनिटी। आपके महाभारत में और रामायण में भी है जहाँ में कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वो युद्ध करे, और अगर युद्ध करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी। उस जन्नत में क्या मिलेगा, उसका सब आप भूल जाएंगे, भगवान मिलेगा। सो आप अपने घर को देखिए, दूसरों के घर में ना देखिए। और जहाँ तक जिहाद का सवाल, जिहाद अरबी वर्ड जिहाद से आता है, इसका मतलब स्ट्राइक, इसका मतलब आपको परफेक्ट करना, दिन ब दिन अपने आप को परफेक्ट करना, अपने आप को डेवलप करना, इस कॉल जिहाद। स्पिरिचुअली सूफी में अपने आप नफ्स को काबू रखना, अपनी गुनाहों को पाक रखना, अपने को सब पवित्र रखना, उसको जिहाद 4 होता है। एक जिहाद कल्ब, जिसे हाइस्ट जिहाद कहते हैं, एक जिहाद है ज़ब्न, जिस ज़बान का जिहाद, एक जिहाद कल्ब राइटिंग कलम, और जिहाद है जंग। और जिहाद जंग इसलिए होता है जब इस्लाम खतरे में पड़े। And fight in the name of Allah, and fight in the name of Allah, and the fitna, display politics of Allah, and all types of provision। तो पाप और एनीथिंग जो इस्लाम के खिलाफ हो सब मिटा दो। वो चीज़ जो मुसलमानों को मारे, जो मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े करे, इसको हटा दीजिए। मुसलमानों को रिलीजियस फ्रीडम, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ हो, उनसे लड़ना है। और इसे मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी। एंड दैट्स अ रियलिटी। जिहाद क्या होता है? हाउ कुड एक्सप्लेन? आई एक्सप्लेन यू। डिड यू हेयर अबाउट वॉर डेमोक्रेसी? Did you hear about war of terrorism? Why people are making war of terrorism or democracy? जब अमेरिका में स्लेवरी प्रैक्टिस हो रहा था, अब्राहम लिंकन वॉर डिक्लेयर किया था अपने ही भाई साउदर्न स्टेट में, ताकि वो एक रहे, ताकि स्लेवरी को फिनिश कर सके। That's called jihad. Stood for the unity, fight for humanity. गुरु ग्रंथ साहिब और सब ने तलवार उठाकर हिंदू धर्म की रक्षा की, लोगों की रक्षा की, समाज की, उसको कहते हैं जिहाद। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स सब ने मिलकर देश के लिए आज़ादी, उसको कहते हैं जिहाद। जिहाद मीन्स सच्चाई के लिए लड़ाई। That's a fourth jihad, for fighting for truth and humanity. If you suffer operation prosecution, that's still jihad. जो मरते हैं उन्हें मार्टर शहादत ही कहते हैं। तो मुसलमानों के राष्ट्रवाद में तो सवाल नहीं उठाए तो अच्छा है, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान, बाग हज़ारिका, हाजी अली खान, इस वजह महान मुसलमान मुग़लों के खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। सूरी डायनेस्टी से पूरी मुसलमान, और हम बंगाली मुसलमान अपने देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। शायद मुझे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So stay tuned and don't mess with us.